A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हैं. And along with this, we will also share some very critical practice questions with you towards the end of the lecture. आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से देखते हुए इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के उत्तर देने का प्रयास कीजिए, जिन्हें आप निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में. तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज के दिनांक अर्थात 15 जुलाई के दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की. The very first fact is associated with 1903 अर्थात वर्ष 1903 से when veteran INC leader and freedom fighter K. Kamaraj was born अर्थात आज के दिन जाने माने कांग्रेस नेता और स्वतंत्रता सेनानी के कामराज का जन्म हुआ था. कुमारस्वामी कामराज, जिन्हें लोकप्रिय रूप से कामाराजार भी बुलाया जाता है, was an Indian independence activist and politician who served as the chief minister of Madras state, that is the contemporary Tamil Nadu state, from 1954 to 1963. He was the founder and the president of Indian National Congress organization, अर्थात Indian National Congress O, widely acknowledged as a kingmaker as well in the Indian politics during the 1960s time. He also served as the president of the Indian National Congress for 2 terms between the period from 1964 to 1967 और जलियनवाला बाग हत्याकांड उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट बना जब उन्होंने राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए लड़ने और विदेशी शासन को समाप्त करने का फैसला किया. वर्ष 1927 में उन्होंने स्वर्ण सत्याग्रह की शुरुआत की थी मद्रास स्टेट में, and he was also chosen to lead the Neel statue satyagraha which happened in the state of Madras as well. He went to jail for a period of 2 years in June 1930 for having participated in the salt satyagraha that was led by Rajgopalachari at Vedaranyam. However, he was released before completing this 2-year term in prison as a result of the 1931 Gandhi-Irwin Pact. उन्होंने क्विट इंडिया आंदोलन ऑफ 1942 में भी एक सक्रिय भूमिका निभाई थी और अप्रैल 1954 में ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास प्रोविंस. एक चीफ मिनिस्टर के रूप में ही रिमूव्ड द फैमिली वोकेशन बेस्ड हेरिडिटरी एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय earlier regimes, and he also introduced free school uniforms to remove all caste and creed distinctions among students. 1963 में उन्होंने नेहरू को प्रपोज किया था that senior Congress leaders should leave ministerial posts to take up organizational work. This suggestion came to be known as Kamraj Plan. अपने सभी योगदानों के कारण he was awarded with India's highest civilian honor, the Bharat Ratna पुरस्कार, posthumously in 1976. और अब देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो है संबंधित 1955 अर्थात 1955 से, when जवाहरलाल नेहरू was honored with the भारत रत्न, अर्थात जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. जुलाई 15, 1955 को भारत के पहले प्रधानमंत्री को भारत रत्न, दैट इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, से सम्मानित किया गया एट अ टाइम व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू के बारे में, इनसे जुड़े सभी योगदानों के बारे में, तो इन्होंने अपनी लॉ का स्नातक प्राप्त किया था लंदन से, आफ्टर विच ही केम टू इंडिया एंड सर्व्ड एज अ लॉयर इन इलाहाबाद. He joined the Indian National Congress and served for the party at various positions. However, his ideas were radical as compared to many other people in the party. वह एनी बेसेंट से बेहद प्रभावित थे and also worked for her Home Rule League. He was also later involved in the non-cooperation movement of 1920, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था for the first time.
वह महात्मा गांधी से मिले और दोनों के बीच एक घनिष्ठ मित्रता स्थापित हुई, which continued till the very end. When Mahatma Gandhi had called off the non-cooperation movement in the wake of violence at Chauri Chaura, then party में एक split हुआ and Motilal Nehru and C.R. Das formed the Swaraj Party. परंतु Jawaharlal Nehru remained with the Congress and Mahatma Gandhi. He later became the General Secretary of the All India Congress Committee in September 1923 और वह पार्टी प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग द फेमस लाहौर सेशन ऑफ 1929 जो कि याद किया जाता है इतिहास में फॉर its declaration of complete independence as the goal of the freedom movement. Jawaharlal Nehru also became the president of the All India States People Conference in 1935. इस ऑर्गेनाइजेशन ने बाद में प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में एक अहम भूमिका निभाई थी. Nehru ji also participated in the Quit India movement and Salt Satyagraha movement, which were popular pan-Indian movements. Much later, he headed the interim government of India in 1946 और जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई officially 15 अगस्त को in 1947, then he became the first Prime Minister of India. As a Prime Minister, उन्होंने mixed economy को propagate किया. He established heavy industries, believing them to be essential for the development of the country. 1953 में he also appointed the States Reorganization Commission to redraw the state boundaries on linguistic lines. He was the founder and leader of the non-alignment movement. और अगर बात करें उनके द्वारा लिखी गई कुछ यादगार किताबों की, so some important names are The Discovery of India and Glimpses of World History. From 1957 onwards, his birth anniversary has been celebrated in India as Children's Day. और अब इसके साथ आज का अगला फैक्ट देखते हैं जो है संबंधित 2002 अर्थात 2002 वर्ष से when APJ Abdul Kalam was elected as the 11th President of India अर्थात APJ Abdul Kalam को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया. He was an Indian aerospace scientist who served as the President of India from 2002 to 2007. उनका संबंध तमिलनाडु राज्य से था. In 1969, he was transferred to the Indian Space Research Organisation, ISRO, where he was the project director of India's first satellite launch vehicle, SLV-3, which successfully deployed the Rohini satellite in near-Earth orbit in July 1980. उन्होंने सर्व किया था as the Chief Scientific Advisor to the Prime Minister and Secretary of the Defence Research and Development Organization from July 1992 to December 1999. उन्हें अक्सर कहा जाता है as the Missile Man of India for his contribution and work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology. इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि ये भारत के उन 6 प्रेसिडेंट्स में से एक हैं who have been honored with the highest civilian honor भारत रत्न. उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था in the year 1997. वर्ष 2012 में उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से भारत के युवाओं के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जिसे नाम दिया गया What Can I Give Movement. और अगर बात करें उनके द्वारा लिखी गई कुछ पॉपुलर किताबों की, so these are India 2020, A Vision for the New Millennium, The Luminous Sparks, Indomitable Spirit and Wings of Fire and Autobiography. और अब इसके साथ आज का अगला फैक्ट देखते हैं जो है कि किस प्रकार आज के दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे विश्व भर में अर्थात टुडे विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है. It is observed annually on 15th July with a focus on strategic importance of equipping or enabling young people with skills so that they can achieve employment, a decent work and entrepreneurship opportunities. वर्ष 2014 दिसंबर के दौरान यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था और रेजोल्यूशन जिसके अंतर्गत आज का दिन वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के रूप में डिक्लेयर हुआ था. यह युवा लोगों के रोजगार के
सामने आने वाले अवसरों और चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया जाता है। अगर बात करें वर्तमान वर्ष या 2021 के थीम की फॉर दिस डे, सो इट इज रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक, जो कि बात करता है कि किस प्रकार बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक पीपल हैव हैड टू फेस financial problems in business, trade and employments। और अब इसके साथ आइए चल के देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आज हैं हमारे साथ। द वेरी फर्स्ट वन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ पार्टी, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओ के संस्थापक कौन थे। ऑप्शंस हैं ए के कामराज, बी बीपी शास्त्री, सी एच के देसाई और इज इट डी वीरेंद्र पटेल। द सेकेंड क्वेश्चन इज where had the नील स्टैचू सत्याग्रह taken place, अर्थात नील प्रतिमा सत्याग्रह कहाँ हुआ था। ऑप्शंस में कुछ जगहों के नाम हैं जैसे ए बॉम्बे, बी मद्रास, सी पंजाब और was it डी असम। द थर्ड क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, अर्थात जानी मानी पुस्तक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक का नाम आप हमें बताइए। ऑप्शंस में जो नाम है वो है कि ए एम के गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और इज इट डी सरोजिनी नायडू। द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडे इज हु हैड इनिशिएटेड द व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट, अर्थात व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी। ऑप्शंस में कुछ नाम है ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी विक्रम साराभाई और इज इट डी कैलाश सत्यार्थी। और इसके साथ आज का फिफ्थ प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट्स इज नॉट अ रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, अर्थात निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों में से कौन भारत रत्न के प्राप्तकर्ता नहीं है। ऑप्शंस हैं ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी के आर नारायणन, सी सर्वपल्ली राधाकृष्ण और इज इट डी जाकिर हुसैन। इसके साथ आज का छठा और लास्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑब्जर्व्ड, अर्थात विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस है ए 13th जुलाई, बी 14th जुलाई, सी 15th जुलाई और विल इट बी डी 16th जुलाई। और अब इन सभी क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड विद दिस, हैव अ ग्रेट डे, प्लीज स्टे सेफ